नितिश यस जी मैम। ऑन कर दीजिए वहां से। जी मैम। यस मैम, हो गया मैम। हो गया, जी ग्रेट। मैम। यस मैम, आ गया मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू नितिश जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस मैम, हो गया मैम। So, good morning, everyone. Good morning to all my nursing bachas. And so glad to see you all up so early morning to attend this class. And I can tell you all these efforts which you bachas are putting, they are going to pay you good results. They are going to give you good results. So just keep doing your efforts. Right? अब मुझे तुम लोग को I have to take up PIH and twins today, right? So let's start with twins today. Chalo. So first important thing is twin pregnancy mein we are going to take up all the important MCQs which have been asked till today, and we are going to do the topic as well. So first question which was asked in your exam is twin pregnancy predisposes to option A hydramnios, option B PIH, option C malpresentation, option D all of the above. देखो, please understand, twin pregnancy में there are two things which you have to remember. Obviously there are two fetuses. अगर दो fetus होंगे तो urine production will be more, and if urine production is more, so obviously there is going to be a polyhydramnios. Now because of polyhydramnios हमें क्या मिलेगा? Because of polyhydramnios they can be preterm labor, they can be premature rupture of membranes, they can be PPH, right? They can be malpresentations. Why malpresentations? Because fetus will keep on changing its position, right? Plus in case of twin pregnancy, so malpresentations, then और क्या हो सकता है because of polyhydramnios? इतना सारा amniotic fluid है. So when the membranes will rupture, what is going to happen? The entire amniotic fluid is going to come out suddenly, because of which what is going to happen? Because of which the size of the uterus will suddenly shrink, and because size of the uterus will suddenly shrink, that is why there will be so all of a sudden the size of the uterus will shrink. So the placenta which was attached to the uterus will get detached, and that is, it is going to lead to abruptio. Then it can lead to cord prolapse. All these things happen in twin pregnancy because of polyhydramnios, right? Now I want all of you to remember one very important thing. Whenever the size of the placenta is big size placenta, जब भी किसी भी कंडीशन में जब भी प्लेसेंटा का साइज बिग होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उससे ये हो सकता है, बिकॉज प्लेसेंटा का साइज बिग है तो अ पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, राइट? देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज प्लेसेंटा प्रेविया, यानी कि दे कैन बी एंटीपार्टम हैमरेज. नंबर टू, जब भी प्लेसेंटा का साइज बिग होता है इट प्री डिस्पोजेस टू PIH. दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर कि जब भी साइज ऑफ द प्लेसेंटा बिग होगा देर इज गोइंग टू बी PIH. लेकिन PIH खुद से स्मॉल साइज प्लेसेंटा लेकर आता है. जब PIH हो जाएगा तो प्लेसेंटा का साइज स्मॉल हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर, स्मॉल प्लेसेंटा केवल 3 कंडीशंस में मिलता है. स्मॉल प्लेसेंटा कौन सी 3 कंडीशंस में मिलता है? नंबर 1, इट इज सीन इन PIH. नंबर 2, it is seen in IUGR, and number 3, it is seen in uteroplacental insufficiency, right? Then next is, so over here it is all of the above. Polyhydramnios भी मिलेगा, malpresentation भी मिलेगा, PIH भी मिलेगा, all of the above. Now the next question which they can ask is, what is the most common fetal complication of twin pregnancy?
Please remember, most common fetal complication of twin pregnancy is prematurity. If they ask you most common cause of maternal mortality in twins, most common cause of maternal mortality in twins is PPH. Right? Now, because one of the most common complications of twin pregnancy is preterm labor, that is why in all twin pregnancies you have to give injection dexamethasone. Dose of injection dexamethasone, I've already told you that you have to give 4 injections, 6 milligrams each at 12 hours interval, and it has to be given IM. And what is the contraindication? Chorioamnionitis. एंड ये इंजेक्शन डेक्सामेथासोन हम कब देंगे? ये देंगे 32 to 34 वीक्स के बीच में, राइट? सो वाई हम हर ट्विन प्रेगनेंसी में क्यों देते हैं हम डेक्सामेथासोन? हर ट्विन प्रेगनेंसी में इसलिए देते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन fetal complication of twin pregnancy is preterm labor, is prematurity, and most common complication of twin pregnancy is preterm labor. That is why हमेशा हमें ट्विन प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में इंजेक्शन डेक्सामेथासोन देना है, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू हेलेन्स रूल, what are the chances of twin pregnancy? Please remember, बहुत easy question है. हेलेन्स रूल कहता है कि incidence of twin pregnancy is 1 in 80 pregnancies. Incidence of triplets will be 1 in 80 square. Incidence of quadruplets will be 1 in 80 cube. इस तरीके से. This is what is Helen's rule. So according to Helen's rule, chances of twin pregnancy are 1 in 80. प्रियंका, कोरियोएमनियोनाइटिस इसलिए एक्सेप्शन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का, बिकॉज कोरियोएमनियोनाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, एंड इन्फेक्शन में आप स्टेरॉइड्स थोड़ी ना दोगे, राइट? नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू इज कि ट्विन प्रेगनेंसी कितने टाइप्स की होती है. ट्विन प्रेगनेंसी इज बेसिकली डिवाइडेड. वी हैव 2 types of twin pregnancies. One is we have the dizygotic twins. What are dizygotic twins? Dizygotic twins वो twins होते हैं जिनमें there are 2 ova fertilized by 2 sperms, and that is how 2 zygotes are formed, right? Each zygote will have its own chorion and its own amnion. हर zygote अपना अपना amnion से सराउंडेड होगा, एंड हर zygote अपने अपने chorion से सराउंडेड होगा, राइट? सो अंदर वाली लेयर ऑलवेज इज amnion एंड बाहर वाली लेयर इज chorion. सो जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं दे आर ऑलवेज डाइकोरियोनिक, डाइएमनियोटिक. एंड जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं इनका सेक्स कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट. सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट. राइट? So sex can be same or it can be different. ठीक है? Now, in case of monozygotic twins, there is a single zygote, there is a single ova which is fertilized by single sperm, and that is how a single zygote is formed, and then this zygote divides into 2. Right? तो जो monozygotic twins होते हैं they always have same sex, they have same blood group, they have same HLA typing, and they have the same looks. In other words, their phenotype is the same, right? What is that जो उनमें different होता है? उनमें different होता है उनका fingerprints. What is different? Fingerprints is different. And that is why इतनी सारी movies बनी है ना जिसमें मैम इसे याद रखने में दिक्कत होती है. किसे याद रखने में दिक्कत होती है बेटा? किसको याद रखने में दिक्कत है? देखो, डाइजाइगोटिक ट्विन्स में हर ट्विन के पास अपना कोरियन होगा, अपना एमनियन होगा.
तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स हमेशा डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होंगे, राइट। अब इसको अगर समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, रटो मत। ये ध्यान रखो कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो अब मैं बताने जा रही हूँ, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वो डाइकोरियोनिक होंगे कि डाइएमनियोटिक होंगे, ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ डिविजन। एज आई सेड ना कि एक सिंगल जाइगोट बनेगा एंड वो 2 जाइगोट्स में डिवाइड होगा। सो ये जो सिंगल जाइगोट किस टाइम पे डिवाइड कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ डिविजन ऑफ द सिंगल जाइगोट, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड। कैसे समझोगे अब इसको, ये ध्यान रखो कि कोरियन बनता है बाय डे 8, right? Chorion is formed by day 8 and amnion is formed by day 8. One second, सही बता रही थी। Chorion is formed by day 8 and amnion is formed by day 10 of the after fertilization. So amnion is formed day 10 after fertilization, chorion is formed by day 8 after fertilization, right? अब मान लो एक बड़ी बॉल है, अब इस बड़ी बॉल ने डिवाइड किया 2 स्मॉल बॉल्स में, ठीक है। एक बड़ी बॉल थी, उसने डिवाइड किया 2 स्मॉल बॉल्स में एंड ये डिवीजन हुआ एट लेस दैन 4 डेज। तो जब डिवीजन एट लेस दैन 4 डेज होगा तो ये दोनों छोटी बॉल्स के पास अपना अपना एमनियन होगा एंड अपना अपना कोरियन होगा, अपना अपना एमनियन, अपना अपना कोरियन। आई एम मेकिंग कोरियन विद लाइट ब्लू इन कलर, राइट। ये हो गया। So अपना अपना कोरियन, अपना अपना एमनियन एंड ओवर हियर यू हैव द जाइगोट, ठीक। सो अब ये कैसा ट्विन बना, ये बना डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, 2 कोरियंस 2 एमनियंस। मान लो ये बड़ी बॉल डिवाइड करती है बिटवीन 4 to 8 डेज। अब जब ये बड़ी बॉल बिटवीन 4 to 8 डेज डिवाइड करेगी तो बाय डे 8, जो हम कहते हैं ना कि कोरियन 8 डे पे बनता है, एग्जैक्टली 8 डे पे नहीं बनता है, बाय 8th डे कोरियन बनता है। तो ये जो बड़ी बॉल है ये ऑलरेडी सराउंडेड होगी बाय अ कोरियन एंड देन इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि 8th डे तक तो पूरा रेडी हो जाता है कोरियन, और डिवीजन अगर 4 to 8 डेज में हो रहा है तो ऑलरेडी बड़ी बॉल में कोरियन बन चुका है एंड देन इट इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 स्मॉल बॉल्स एंड दोनों छोटी बॉल्स के पास अपना अपना एमनियन बनेगा बाय डे 10। तो इन दिस केस you will have a single chorion, right, and the 2 zygotes will have their own amnion. This is what is called as monochorionic diamniotic twins. Third category, third condition, मान लो डिविजन हो रहा है मोर देन 8 डेज पे। नाउ मोर देन 8 डेज पे, 8 डे तक हमारा कोरियन बन गया। मोर देन 8 डेज पे अब ये जो बड़ी बॉल है ये एमनियन से भी सराउंड हो गई, तो इस बड़ी बॉल के पास अपना एमनियन है, अपना कोरियन बन गया, क्योंकि बाय डे 8 कोरियन बन जाता है, उसके बाद एमनियन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर डिवीजन हम लगभग कहते हैं 8 to 12 डेज में हो रहा है, अगर डिवीजन 8 to 12 डेज के अंदर हो रहा है, देन इन दैट केस जो बड़ी बॉल है इट विल बी सराउंडेड बाय इट्स ओन कोरियन एंड इट्स ओन एमनियन एंड देन इट इज डिवाइडिंग इनटू 2। तो अब क्या होगा, देयर विल बी सिंगल कोरियन, single amnion, and now the big ball divided into small balls. So this becomes monochorionic monoamniotic twin.
अब अगर डिवीजन मोर देन 12 डेज पे हो रहा है, राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड, अब तक कोरियन एमनियन बन चुके हैं, अब ये जो बड़ी बॉल है इसमें कोई ना कोई फीटल पार्ट की शेयरिंग हो रही होगी, अब कोई ना कोई पार्ट ऑफ द फीटस बन रहा होगा, and now it is dividing into two, right? So there will be a single chorion, single amnion, right? And the parts are shared. This is what is called as conjoined twin. Please remember, very very important thing to remember, कि ये जो conjoined twins होते हैं इनमें भी single chorion single amnion होता है, राइट. कंजॉइंट ट्विन्स में भी सिंगल एमनियन एंड सिंगल कोरियन होता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि ये जो ट्विन्स हैं हमारे मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन, ये सेम एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहे हैं. बोथ दीज ट्विन्स आर स्विमिंग इन द सेम पूल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. दोनों के पास अपनी अपनी कॉर्ड है. तो एक बहुत स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन मिलता है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन्स में, that is cord entanglement. Cord entanglement, right? And because of this जितने भी monochorionic monoamniotic twins हैं, so monochorionic monoamniotic कौन से varieties हैं? monochorionic monoamniotic include करेगा plus conjoint भी include करेगा. so जितने भी monochorionic monoamniotic twins हैं उन सब में आपको cesarean section करना चाहिए between 32 to 34 weeks after giving them steroids, right? क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज दोनों ट्विन्स सेम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर स्विम कर रहे हैं. अगर कोई पूछे व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स, सो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स का मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन इज ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. Twin to twin transfusion syndrome, right? That's the most common complication of monochorionic diamniotic twins. And monochorionic diamniotic twins में आप कब करते हो इंडक्शन ऑफ लेबर? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कब करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर कब करना है? इसमें हमें करना है बिटवीन 34 to 37 वीक्स, राइट. अगर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम प्रेजेंट है तो 34 पे करो, अगर एब्सेंट है तो 37 पे करो, राइट. डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है? नो कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ डिविजन ऑफ ट्विन्स टेक्स प्लेस. लेट अस कम बैक टू अ क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट वाज रिटन हियर. हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो. मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स इज गोइंग टू हैपन इफ डिवीजन अकर्स कब? ए बी सी और डी. मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक कब होंगे? अगर डिवीजन कब हो रहा है? गिव मी द आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स कब मिलेंगे? जल्दी बताओ. डिवीजन जब कब होगा तो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक मिलेंगे? ऑप्शन डी, जानवी, सत्या, प्रियंका, एक्सेलेंट. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स में किस टाइप की डिलीवरी कराते हो? विजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन? डिलीवरी का मोड क्या होगा? हाउ आर यू गोइंग टू गेट द डिलीवरी डन इन मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स? जल्दी बताओ. व्हाट विल बी द मोड ऑफ डिलीवरी? अभी बताया पेरियार्यूर, वेरी गुड बेटा. सिजेरियन सेक्शन. व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी? What is the time of delivery? 32 to 34 weeks. 32 34 weeks. ठीक है.
Okay. Next. So we have done this. Now अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ओवरऑल कौन सा वेराइटी ऑफ ट्विन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विन्स इज डाइजाइगोटिक ट्विन्स, एंड क्योंकि डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर मोर कॉमन इन डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स, सो ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी इज डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक. अगर कोई पूछे कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में मोस्ट कॉमन वेराइटी कौन सी होती है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक. राइट, प्लीज रिमेंबर डाइकोरियोनिक ट्विन्स हमेशा दे हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस than monoamniotic or monochorionic twins, right? Please remember monochorionic monoamniotic twins, right, and conjoined twins, they are delivered by cesarean section between 32 to 34 weeks, right, after giving corticosteroid. This is something which we know. Then specific complication of monoamniotic twins. So what is the specific complication of monoamniotic twins? As I told you, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक की कौन सी स्पेशल होती है? इट इज कॉर्ड एंटेंगलमेंट. राइट, सो मोनोएमनियोटिक ट्विन्स की कौन सी होती है? मोनोकोरियोनिक एंड मोनोएमनियोटिक. सो मोनोएमनियोटिक ट्विन्स का स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन होता है, बेटा क्या बताना है श्रुति? मोनोएमनियोटिक ट्विन्स का स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन इज कॉर्ड एंटेंगलमेंट. अगर कोई पूछे कि मोनोकोरियोनिक ट्विन्स एंड मोनोएमनियोटिक ट्विन्स के कॉम्प्लिकेशन बताओ, तो प्लीज़ रिमेंबर कॉम्प्लिकेशन जो कि स्पेसिफिक होता है मोनोएमनियोटिक ट्विन्स का इज कॉर्ड एंटेंगलमेंट. कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में स्पेसिफिक होते हैं? नंबर 1 ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, नंबर 2 ए कार्डियक ट्विन, नंबर 3 ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस. सो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ए कार्डिया एंड twin anemia polycythemia sequence, these are 3 complications जो कि आपके वेरी कॉमन होते हैं मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में. ये कॉम्प्लिकेशन कभी भी डाइकोरियोनिक ट्विन्स में नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि डाइकोरियोनिक ट्विन्स they always have better prognosis than monochorionic twins. राइट, हमेशा डाइकोरियोनिक ट्विन्स की बेटर प्रोग्नोसिस होती है दैन मोनोकोरियोनिक ट्विन्स. वाई? क्योंकि मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं लाइक ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ए कार्डियक ट्विन, ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस. जो ये ए कार्डियक ट्विन होते हैं, ये ए कार्डियक ट्विन को ट्रैप भी कहते हैं, ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन, ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन. बेटा ए कार्डियस इज सीन इन मोनोकोरियोनिक ट्विन्स. अब वो मोनोकोरियोनिक हो या एमनियोटिक हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. मोनोकोरियोनिक में ये 3 कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं. मोनोकोरियोनिक चाहे वो मोनोएमनियोटिक हो, चाहे वो मोनोएमनियोटिक हो, चाहे डायएमनियोटिक हो, राइट, दोनों के अंदर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में मिलते हैं. समझो, हमारे पास कौन सी वैरायटी ऑफ ट्विन्स होती है? डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक एंड कंजॉइंट. तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि डाइकोरियोनिक और मोनोकोरियोनिक में से कौन सा बेटर होता है? किसकी प्रोग्नोसिस बेटर होती है? डाइकोरियोनिक की. ऐसा क्यों होता है कि डाइकोरियोनिक की प्रोग्नोसिस बेटर होती है? क्योंकि जितने भी मोनोकोरियोनिक ट्विन्स होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं लाइक ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, लाइक ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन, राइट, या फिर लाइक ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस. इसमें से जो ट्रैप होता है ये मिलता ही ए कार्डियक ट्विन्स के पास है. ए कार्डियक ट्विन्स का मतलब ऐसा ट्विन जिसके एक में हार्ट नहीं हो, राइट, हार्ट इज एब्सेंट.
सो प्लीज रिमेंबर मोनोकोरियोनिक की ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. मोनो एमनियोटिक की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कॉर्ड एंटेंगलमेंट. देन एज आई सेड, मोनोकोरियोनिक ट्विंस की बैड प्रोग्नोसिस है, डाइकोरियोनिक ट्विंस की बेटर प्रोग्नोसिस है, राइट? तो कोई तरीका होना चाहिए हमें ये पता करने के लिए कि ये ट्विन मोनोकोरियोनिक है कि डाइकोरियोनिक है. सो द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विच कैन टेल यू about chorionicity is ultrasound. And what is the best time to do ultrasound ताकि हम chorionicity पे comment कर सकें? 11 to 13 weeks. Clear to all of you? Okay. Now, जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो डाइकोरियोनिक ट्विंस में ट्विन पीक साइन या लैम्डा साइन पॉजिटिव होगा, राइट? एंड मोनोकोरियोनिक ट्विंस में ट्विन पीक साइन या लैम्डा साइन एब्सेंट होगा. कैसे याद रखोगे? डाई का मतलब ट्विंस, डाई का मतलब टू एंड ट्विंस का मतलब टू. तो ट्विन पीक साइन किस में पॉजिटिव होगा? डाइकोरियोनिक में. किस में पॉजिटिव नहीं होगा? मोनोकोरियोनिक में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. Let's see a couple of more questions which have been asked in your exam. Now, I just want you to read the question and be prepared with the answer. I'm just coming in 2 minutes. Right? I am coming in 2 minutes. आप इस question को पढ़ो सब लोग. चलो बताओ. टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू आर सेइंग इट इज ओ बाबा. कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है बी. अच्छा, लेट मी रीड. Sonography of a primigravida who is at 15 weeks gestation reveals a twin pregnancy. Nurse reviews with the client the risk of multiple pregnancy that were explained by healthcare provider. Which condition does the client identify that indicates the need for further instruction about complications? Okay. ठीक है. So, अब मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब क्या है. इस क्वेश्चन का मतलब है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कॉम्प्लिकेशंस बताए थे ट्विन प्रेगनेंसी के. ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसको सुनने के बाद आपको ये लगे कि ये तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर बता ही नहीं सकता, ये हमारा जो क्लाइंट है उसने या तो गलत सुना है या गलत समझा है, तो मुझे उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन देने हैं. ठीक है. सो अब बताओ, ट्विन प्रेगनेंसी में क्या प्री टर्म लेबर हो सकता है? येस और नो? येस हो सकता है, राइट? ट्विन प्रेगनेंसी में क्या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है?
येस और नो, बताओ। क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन होता है? यस होता है, राइट। क्या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक कॉम्प्लिकेशन है ट्विन प्रेगनेंसी का? आई टोल्ड यू ना कि जितना बड़ा प्लेसेंटा उतने ज़्यादा चांसेस PIH के। बट क्या ट्विन प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि ट्विन प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज हो जाए, राइट। प्री टर्म बर्थ भी मिल सकता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन भी मिल सकता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी मिल सकता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के चांसेस तो इंक्रीज नहीं होते ना ट्विन प्रेगनेंसी में। हम कभी भी नहीं कहते कि ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है डाउन सिंड्रोम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या कभी भी ये कहा है कि ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन इज डाउन सिंड्रोम? कभी भी नहीं, राइट। सो प्री डाउन सिंड्रोम इज द आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन बी। अब आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में होता क्या है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में ये होता है कि देर आर टू ट्विन्स, one twin is your, sorry, it is seen in monochorionic diamniotic twins. One twin is this and the other twin is this. दोनों ट्विन्स के बीच में एक वैस्कुलर कनेक्शन है, एंड ये वैस्कुलर कनेक्शन ऐसा है कि ब्लड इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन। सो एक ट्विन बन जाता है डोनर ट्विन और एक ट्विन बन जाता है रिसिपिएंट ट्विन, राइट। सो नाउ डोनर ट्विन अपना ब्लड दे रहा है, तो डोनर ट्विन में क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड मिलेगा, अनीमिया मिलेगा, राइट। बिकॉज वो ब्लड दे रहा है तो उसका GFR डिक्रीज्ड होगा। जब उसका GFR डिक्रीज्ड होगा तो उसका रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज्ड होगा। जब उसका रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो GFR डिक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, एंड अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हुआ तो देर इज गोइंग टू बी ओलिगोहाइड्रामनियोस, एंड क्योंकि किडनी पे लोड पड़ रहा है देर आर चांसेस ऑफ रीनल फेलियर ऑन। तो ये डोनर ट्विन्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन डिक्रीज मिलेगा, अनीमिया मिलेगा, ओलिगोहाइड्रामनियोस मिलेगा, रीनल फेलियर के चांसेस मिलेंगे। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रिसिपिएंट ट्विन के अंदर मिलेगा, उसमें हीमोग्लोबिन इंक्रीज मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया मिलेगा, राइट, पॉलीहाइड्रामनियोस मिलेगा, एंड क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ गया पॉलीहाइड्रामनियोस मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ गया देर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज अब हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो पॉलीहाइड्रामनियोस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट, एंड आपको मिलेगा कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। These are the complications which you get in recipient twin. अब इन complications में से there are two complications, right? So oligohydramnios and polyhydramnios. अगर fetus में oligohydramnios and polyhydramnios मिल रहा है, राइट, आपने अल्ट्रासाउंड किया, मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स थे, एक फीटस को ओलिगो था जो डोनर वाला है, एंड जो रिसिपिएंट वाला है उसको पॉली था। जैसे ही आप ओलिगो और पॉली फीटस के अंदर देखोगे तो दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, राइट। अब ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम मोर कॉमन किस में होता है? मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स में। मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स में it is less common to have twin to twin transfusion syndrome. So कौन सी टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी में होता है? मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में। डोनर ट्विन एंड रिसिपिएंट ट्विन का क्राइटेरिया क्या है ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम? एक ट्विन में ओलिगो होना चाहिए, दूसरे में पॉली होना चाहिए, एंड इट शुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स, राइट। दीज आर द ओनली टू क्राइटेरिया कि मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक हो एंड साथ में एक ट्विन में ओलिगो हो, एक ट्विन में पॉली हो। दैट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर twin to twin transfusion syndrome. Now, let's talk a little bit about conjoined twins. Conjoined twins में I want you to remember most common type of conjoined twins are paraphagous. Do not say thoracophagous.
पैराफेगस का मतलब है जहाँ पे उनका अब्डोमेन एंड पेल्विस दोनों फ्यूज्ड है। तो अगर अब्डोमेन एंड पेल्विस दोनों फ्यूज्ड है दैट इज पैराफेगस। अगर पैराफेगस ऑप्शंस में नहीं दिया है देन यू आर गोइंग टू मार्क इट एज थोरैकोफेगस। अगर कोई पूछे what is the least common type of conjoined twins, least common type of conjoined twins are rachyphagus. Rachyphagus का मतलब है they are joined at vertebral column and second best answer इसका है craniofagus. So rachyphagus which is joined at the vertebral column is most common, is least common and अगर ये ऑप्शंस में नहीं दिया rachyphagus then second best answer is craniofagus. मोस्ट कॉमन में बेस्ट आंसर इज पैराफेगस, अगर वो नहीं दिया तो थोरैकोफेगस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कंजॉइंट ट्विंस की डिलीवरी कैसे होती है? एज आई टोल्ड यू कंजॉइंट ट्विंस आर डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन एट 32 to 34 वीक्स। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन in twin pregnancy? Please remember most common type of presentation is dono twins vertex. That's the most common type of twin pregnancy. Now, if so, most common is both the twins should be vertex. Please remember vaginal delivery is possible only if first twin is vertex. अगर first twin vertex है then vaginal delivery is possible. अगर first twin आपका vertex नहीं है, आपका first twin breech है, या अगर आपका first twin transverse lie है, then you cannot go for vaginal delivery. You have to go for cesarean section. Are you understanding this? Yes. So आप vaginal delivery तभी करोगे जब first twin आपका vertex है. How will you come to know कि first twin vertex है या second twin? So वो twin जो कि ultrasound में internal os के सबसे पास होगा that becomes the first twin, right? और कोई क्राइटेरिया नहीं होता फर्स्ट ट्विन का. नाउ एज आई टोल्ड यू कि अगर फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स है तो विजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है. सो इफ फर्स्ट ट्विन इज वर्टेक्स, राइट, एंड सेकेंड ट्विन इज ऑल्सो वर्टेक्स, राइट, अगर ऐसी केस है तो यू हैव टू गो फॉर विजाइनल डिलीवरी ऑफ बोथ द ट्विन्स. जब आप विजाइनल डिलीवरी करा रहे होगे ट्विंस की तो प्लीज़ रिमेंबर इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन को नहीं देते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन, राइट, उसको आप दोगे आफ्टर डिलीवरी ऑफ सेकेंड ट्विन, राइट. देन वन सेकेंड. नाउ इफ फर्स्ट ट्विन इज ब्रीच एंड सेकेंड इज वर्टेक्स तब क्या करोगे? फर्स्ट अगर ब्रीच है, आई विल शो. इफ फर्स्ट ट्विन अगर ब्रीच है एंड सेकेंड ट्विन आपका वर्टेक्स है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? इन दैट केस हम फर्स्ट ट्विन आपका वर्टेक्स देखो एंड सेकेंड ट्विन ब्रीच. इस केस में आपने फर्स्ट ट्विन की विजाइनल डिलीवरी कराई, फर्स्ट ट्विन की विजाइनल डिलीवरी कराओ और सेकेंड ट्विन को क्या करोगे? सेकेंड ट्विन को असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी से डिलीवर करेंगे, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी, ठीक है. अब मान लो आपने कहा कि फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स है हमारा एंड सेकेंड ट्विन ट्रांसवर्स लाई. अगर ऐसा होगा कि फर्स्ट ट्विन वर्टेक्स and second twin transverse lie. So please remember first twin को तो हम vaginal delivery से deliver कर लेंगे. Second twin के लिए second twin transverse lie कभी deliver होगा ही नहीं. I am going to take my hand inside the uterus, hold the feet of the baby and bring it out, right? So मैंने क्या किया? I have taken my hand inside, I have held the feet of the baby and brought it to the level of internal os. This is called as internal podalic version. सो इंटरनल पोडालिक वर्जन फर्स्ट ट्विन को आपने डिलीवर कराया विजाइनल डिलीवरी, फर्स्ट ट्विन विजाइनल डिलीवरी, राइट, एंड सेकेंड ट्विन
second twin internal podalic version. इंटरनल पोडालिक वर्जन. इंटरनल पोडालिक वर्जन करने के बाद आपका ट्विन बन जाएगा ब्रीच, राइट, एंड देन यू आर गोइंग टू गो फॉर ब्रीच एक्सट्रैक्शन. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ व्हाई आर वी मेकिंग इट ब्रीच एंड नॉट सिफालिक? हम इंटरनल पोडालिक वर्जन क्यों करते हैं? इंटरनल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना हाथ अंदर लेकर जा रहे हैं यूट्रस के. पोडालिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फीटस के लेग को नीचे लेकर आ रहे हैं. अब क्या हम इस केस में सिफालिक वर्जन कर सकते हैं? नो. व्हाई नॉट? एक्सटर्नल सिफालिक वर्जन, या हम इंटरनल सिफालिक वर्जन क्यों नहीं प्रेफर करते? व्हाई इज इट कि हम इंटरनल पोडालिक वर्जन कर रहे हैं? सिंपल सा आंसर है बेटा, आपने फीटस के लेग को पकड़ा हुआ है, आपका हाथ अंदर है. अंदर हाथ पकड़ के उसको ब्रीच बनाना आसान है कि उसको घुमा के सिफालिक बनाना आसान है? कॉमन सेंस है ना, कि फीट को पकड़ के नीचे घसीट के लाना ज़्यादा आसान है रादर देन हम उसको रोटेट करें कि अब तू बन सिफालिक, राइट. सो कभी भी ये मत कहना कि देर इज समथिंग लाइक इंटरनल पोडालिक वर्जन. देर इज नथिंग लाइक इंटरनल पोडालिक वर्जन, राइट. इट इज इंटरनल सिफालिक वर्जन. कभी भी ये मत कहना देर इज इंटरनल सिफालिक वर्जन. नथिंग लाइक इंटरनल सिफालिक वर्जन. एक ही इंटरनल वर्जन होता है विच इज इंटरनल पोडालिक वर्जन. सिफालिक होता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल सिफालिक वर्जन, इंटरनल पोडालिक वर्जन. इंटरनल पोडालिक वर्जन का आज के टाइम पे केवल एक ही इंडिकेशन है एंड दैट इज अगर फर्स्ट ट्विन सिफालिक है एंड सेकेंड ट्विन ट्रांसवर्स लाई. सो फर्स्ट सिफालिक एंड सेकेंड ट्रांसवर्स लाई है, देन only that's an indication for internal podalic version. Now internal podalic version किस केस में contraindicated होती है? Internal podalic version contraindicated होता है in case of previous cesarean section, right? You will never do internal podalic version in patients of previous cesarean section. Now coming to next question. A woman with dichorionic diamniotic twins attends the antenatal clinic at 36 weeks. First twin is breech and second twin transverse lie. क्या करोगे? उसमें स्पॉन्टेनियस लेबर के ऑनसेट का वेट करोगे, या उसमें लेबर को इंड्यूस करोगे, या आप एक इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करोगे एट 37 वीक्स, या आप इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करोगे 40 वीक्स पे. सो पेशेंट 36 वीक्स प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टर्म प्रेगनेंसी है एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन है, राइट. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपका फर्स्ट बेबी ब्रीच है तो आपको करना तो सिजेरियन सेक्शन है. आई हैव टू डू अ सिजेरियन सेक्शन, राइट. नाउ टाइमिंग क्या होगी उससे सिजेरियन सेक्शन की? 37 वीक्स. ठीक है. सो आपने जब फीटस टर्म पे पहुंच जाएगा तब आपने उसको लेबर इंड्यूस करना है. कोई भी ऐसा अभी अर्जेंसी नहीं है कि मुझे अभी से ही अर्जेंसी वो करनी है, अभी से ही 36 वीक्स पे ही सिजेरियन करना है. नहीं करना है, हम 37 वीक्स तक वेट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ डिलीवरी? नोट करो सब लोग. डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक में 37 to 38 वीक्स, मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में 34 to 37 वीक्स. to 37 वीक्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन आता है कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है एंड कितने वीक्स पे डिलीवर करना है? 34 वीक्स पे. तो अगर पेशेंट के आपके ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम प्रेजेंट है देन 34 वीक्स, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक में 32 to 34 वीक्स, कंजॉइंट में 32 to 34 वीक्स. अब अनकॉम्प्लिकेटेड ट्रिपलेट्स should be delivered
uncomplicated triplets should be delivered between 32 to 33 weeks. यहाँ पे 34 weeks दिया था, तो I'm marking it as 34, but ideally uncomplicated triplets should be delivered between 32 to 33 weeks. Right? अच्छा, now what suppose कि आपके पास एक कपल है जिसके 2 बेबीज़ ऑलरेडी हैं, उसको एक और बेटा चाहिए था, तो उसने आपसे कहा कि आप प्लीज़ IVF करो. अब आपने IVF किया. IVF में उसके 3 बेबीज़ आ गए. 2 उसके पास पहले थे, 3 और आ गए. अब वो आपसे कहेगी कि नहीं भैया, मैं तो 3 नहीं अफोर्ड कर सकती. राइट? आप किन्हीं भी 2 को किल कर दो. आई जस्ट वॉन्ट वन ऑफ द फीटसेस. सो एज अ गायनोकोलॉजिस्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि जितने जो एक्स्ट्रा फीटसेस हैं उनकी डेथ के लिए आई विल गिव पोटेशियम क्लोराइड. आई विल गिव पोटेशियम क्लोराइड इंट्राकार्डियक टू द फीटसेस विच आर नॉट रिक्वायर्ड. एंड उसका टाइम क्या होता है? 12 weeks. Right? So intracardiac potassium chloride injection. ठीक? Then right? Now, indication of urgent delivery of second baby in twin pregnancy are all except. इंडिकेशन ऑफ अर्जेंट डिलीवरी. अब बताओ सेकेंड ट्विन की अर्जेंट डिलीवरी कब कराओगे? अगर एब्रप्शी हो गया तो कराओगे? यस. कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया तो कराओगे? यस. अगर आपने फर्स्ट बेबी को के टाइम पे अचानक से गलती से इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन दे दिया, कभी भी आप इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं देते हो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन. क्यों? क्योंकि अगर आपने इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन दे दिया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा एंड टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड सप्लाई इन द यूट्रस विल डिक्रीज बिकॉज प्रेशर विल इंक्रीज. तो जब ब्लड सप्लाई इन द यूट्रस इज गोइंग टू डिक्रीज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ब्लड कमिंग टू द फीटस विल डिक्रीज. राइट? एंड दैट कैन लीड टू फीटल डिस्ट्रेस. इसीलिए कभी भी इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन इज नॉट गिवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन. तो अगर आपने गलती से दे दिया इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन, देन यू विल हैव टू डिलीवर द सेकेंड ट्विन इमीडिएटली. राइट? ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड बेबी, नो दैट्स नॉट एन अर्जेंसी. अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है सेकेंड ट्विन का तो ब्रीच अपने आप से डिलीवर करेगा, हमें नहीं करना कुछ भी. ऑटोमेटिकली द ब्रीच इज गोइंग टू डिलीवर. नाउ इन सुपर फीकंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन? प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की, देर आर 2 ओवा विच आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म्स. राइट? सो ये जो 2 स्पर्म आते हैं ना, ये दोनों स्पर्म एक ही टाइम पे रिलीज होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि एक पहले और एक बाद में रिलीज हो रहे हैं. ये दोनों स्पर्म मेल एक एक्ट ऑफ इंटरकॉर्स में रिलीज करता है, फिर ये दोनों स्पर्म स्विम करके ऊपर जाते हैं. राइट? एंड ये जाके ओवा को फर्टिलाइज करते हैं एट द सेम टाइम. दैट इज व्हाट इज डाइजाइगोटिक. दैट इज हाउ अ डाइजाइगोटिक ट्विंस इज फॉर्म्ड. नाउ आई एम सेइंग कि देर आर 2 conditions. One is super fecundation and the other one is super fitation. Super fecundation का मतलब है कि fertilization of the 2 ova released. अच्छा, super fecundation यहाँ से मत पढ़ो. I'll tell you what is super fecundation. Super fecundation का मतलब है कि same cycle. Super fecundation. So 2 ova are released in the same cycle but at different times. Right? क्या मतलब ये कि हमारी पेशेंट डे 14 पे एक फीमेल ओव्यूलेट करी, डे 14 पे फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 दिन बाद एक बार फिर से वो ओव्यूलेट करी एंड फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया. तो दोनों ट्विंस में अंतर है केवल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का. ऐसा होता है. राइट? दैट इज सुपर फीकंडेशन. दूसरा, एंड ये जो सुपर फीकंडेशन होता है, दिस इज रेयरली सीन इन ह्यूमंस. मिलता है बट रेयर होता है. एंड अभी रिसेंटली एक केस हुआ है सुपर फीकंडेशन का, जहाँ पे एक ब्राज़ीलियन फीमेल ने 2 बेबीज ट्विंस को डिलीवर किया
दोनों के फादर वर डिफरेंट, क्योंकि सुपर फेकंडेशन में अगर एक ओवा आज रिलीज हो रहा है, देन 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक और ओवा रिलीज हो रहा है एंड वो भी फर्टिलाइज हो रहा है, तो 2 डिफरेंट एक्ट ऑफ इंटरकॉर्स से फर्टिलाइज हो रहा है. देन कम्स अनदर टर्म सुपरफिटेशन. सुपरफिटेशन का क्या मतलब है? सुपरफिटेशन का मतलब है कि दोनों ओवा रिलीज हो रहे हैं एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट साइकिल्स. फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, राइट? अब उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एक और ओवा निकला एंड वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई. तो एक ही यूट्रस के अंदर 2 ट्विन्स हैं और दोनों में डिफरेंस है मोर देन 1 मंथ का. दैट इज व्हाट इज सुपरफिटेशन. सो 2 ओवा released at 2 different times, right? This is not seen in humans. This is not seen in humans. So यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? सुपरफिकेंडेशन, fertilization of 2 ova released at the same time by sperms released at intercourse on 2 different occasions. Very good. That is superfecundation, right? A double-headed monster is called as, so over here these are the images. This is a double-headed monster and double-headed monster को कहते हैं dicephalus. Then we have pyophagus. Pyophagus का मतलब है their buttocks are fused, right? So that is pyophagus. Dicephalus is when there is double-headed monster, that is there is a conjoined twin whose heads are fused. Then this is how a cardiac twins में होता है. A cardiac twins, as I told you, is a complication of monochorionic twins, right? Monochorionic twins में हमें a cardiac twin मिलता है. एक twin के पास हार्ट है, एक के पास नहीं है. जिसके पास नहीं है उसको डोनर ट्विन दे रहा है जिसके पास है. लेकिन ये वाला जो ट्विन है ना जिसके पास है, ये बहुत चालाक ट्विन है. ये हमारे सिबलिंग्स के जैसा है. वो क्या कहता है कि वो अपने सिबलिंग वाले ट्विन को कहता है ठीक है मैं तुम्हें ब्लड दूंगा, लेकिन वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देता है, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है. उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से केवल लेग्स ऑफ द बेबी दिखती है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एकार्डियस एकेफेलस. इसमें हेड नहीं दिख रहा, लेकिन केवल लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बनी है. अब कई बार लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बनती है, कई बार नहीं बनती है. कई बार केवल जब एक फर्स्ट ट्विन डिलीवर किया उसके बाद केवल एक मास निकला, उस मास को कहते हैं हम वो जो ऐसे वाले ट्विन्स को कहते हैं हम एकार्डियस ए अमॉर्फस. एकार्डियस अमॉर्फस. ट्रिक बताओ सुपर फेकंडेशन की बताई थी बेटा. SC सेम साइकिल, S एंड C दोनों है सुपर फेकंडेशन में. S भी है और C भी है, राइट? सो दैट इज सुपर फेकंडेशन में सेम साइकिल में ओवा निकलते हैं. 2 साइकिल्स रिलीज्ड इन सेम ओवा, राइट? इन इमेजेस को एक बार फिर से देख लो बेटा. ये दोनों ट्विन्स एग्जाम्पल हैं ए कार्डियक ट्विन्स के. ए कार्डियक ट्विन्स में एक ट्विन के पास हार्ट नहीं होता, दूसरे के पास होता है. जिसके पास होता है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास नहीं है उसको भेज देता है. अब जिसके पास नहीं है उसको जब थोड़ा सा ब्लड मिलता है तो उसके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप हो जाता है. दिस इज हाउ योर ए कार्डियक एकेफेलस ट्विन्स लुक लाइक. अब ए कार्डियस अमॉर्फस. ए कार्डियस अमॉर्फस में क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी डेवलप नहीं है. जिस ट्विन के पास हार्ट नहीं है उसका कोई पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप नहीं है. एक नॉर्मल बच्चा पैदा होगा एंड एक इस तरीके से बस एक मास दिख रहा होगा. This means this is monochorionic monoamniotic twins, right? Clear to all of you? Okay. So this was on twin pregnancy. Twin pregnancy में इतना ही आता है तुम लोग को usually. अब any questions which you have on twin pregnancy? Any questions which you have on twin pregnancy? Today I also have to take up your PIH. Yes ma'am. बताओ please शिवांश प्रियंका question बताओ.
यस मैम, में क्वेश्चन पूछना है या क्लियर हो गया है? अच्छा, आई आई हैव टू टेक योर PIH. अभी तुम लोग ट्विन प्रेगनेंसी पे क्वेश्चंस करो, एंड जितना मैंने अभी, हार्ट कैसे नहीं होगा, ये अनॉमली है बेटा, अनॉमली है कि हार्ट नहीं है, राइट? दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी बिग अनॉमली विच इज़ देयर कि हार्ट नहीं है. अब आई जस्ट वॉन्ट, एक काम कर लो, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ट्विन प्रेगनेंसी भी रिवाइज कर लो, डायबिटीज़ भी रिवाइज कर लो, राइट? आज ना अभी मेरे पास क्लास स्टार्ट हो गई और अब ख़त्म भी होने वाली है, क्योंकि मेरे को 1 घंटा चाहिए. मेरे पास मैसेज आ गया है कि माई कुक इज़ नॉट कमिंग एंड डॉक्टर पंकज हैज़ टू गो एंड डू अ केस. एक इमरजेंसी आई हुई है. आई जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल ज्वाइन यू अगेन. तो थोड़ी देर तुम लोग अपना ये कर लो, ये वाला प्लीज़ रिवाइज कर लो. एंड मैं अब इसके बाद जो क्लास लूँगी उसमें PIH कराऊंगी, और PIH के साथ एक और टॉपिक कराऊंगी. बताओ PIH के साथ कौन सा टॉपिक करना है? विच टॉपिक आर यू गोइंग टू डू विथ PIH? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी करें, PIH एंड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. PIH एंड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कर लें बेटा, ठीक है? सो जस्ट गिव मी टाइम, मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दूं, राइट? सो PIH, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, 3 टॉपिक्स खत्म करते हैं इसके बाद, राइट? सो अगेन आई विल ज्वाइन यू ऑल एट 10 o'clock. 9:30 पे कर लेंगे, इट विल नॉट टेक मी सो मच ऑफ टाइम. 9:30 पे, लेट्स स्टार्ट एट 9:30. 9:30 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, PIH. ठीक है? ओके, ठीक है. आई विल टेल यू लेबर इसके बाद, कल करते हैं लेबर, या शाम को कर लेंगे, आज लेबर. ओके, टेक केयर बच्चों. आई जस्ट सी यू एट